Now, the next thing that we are going to do, for that particular part we need other data. जो हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम लोगों को इस डेटा की जगह किसी और डेटा की तरफ जाना है. सपोज आई एम गोइंग टू रीड डॉट CSV deliveries डॉट CSV. वॉट दिस डेटा कंटेन्स, इस डेटा फ्रेम में आपको क्या मिलने वाला है? लेट्स नेम इट एज DF2. Actually, this data contain each and everything ball by ball. The matches data जो हमने पहले रीड किया था, जिस पे अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, this data was match by match. एक एक मैच का डेटा था. But in this deliveries data, you have the data ball by ball. हर एक बॉल का डेटा है. So if you will see the dimensions of this data, if you will try to see the dimension of this data, you will find more than 1 lakh observations. ये हमारी number of rows है and 21 columns are there. So it's a very huge data. बहुत बड़ा डेटा ये हम लोगों के पास. So I'm just going to view DF2. So just look at the data what we have. Match ID, inning ID, betting team, bowling team, over, first ball, who was the batsman, who was the non-striker, who was the bowler, was that a super over, क्या वो वाइड का रन था, क्या वो बाई के रन थे, वो क्या वो लेग बाई था, क्या वो नो बॉल थी, क्या वो पेनल्टी था, क्या वो बैट्समैन का रन था, was that extra run, was that total runs, कितने टोटल रन बने फिर उस पर, विच प्लेयर वॉज डिसमिस्ड ऑन द बॉल, अगर कोई डिसमिस नहीं हुआ तो यू कैन सी दिस इज ब्लैंक. देन व्हाट वाज द काइंड ऑफ डिसमिसल, कि अगर प्लेयर आउट हुआ तो कैसे हुआ, कॉट किसने किया, दिस पर्टिकुलर फील्डर. दिस इज व्हाट डिटेल ऑफ डेटा इज बीइंग गिवन टू यू. ये डिटेलिंग है जो हम लोगों को डेटा की गिवन है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन इज, आई वांट टू सी total runs that has been scored by the players so far. मेरा क्वेश्चन है कि मुझे जो बैट्समैन है उनके रन्स पता करने की टोटल रन कितने बनाए आज तक. ओके, आई वॉन्ट टू डू दी सम. मुझे क्या करना है, सम करना है. मुझे देखना है कि किसी भी एक प्लेयर ने कितने रन बनाए आज तक, टोटल रन. सपोज विराट कोहली ने 6000 बनाया है, सचिन तेंदुलकर ने 5000 बनाया. आई वॉन्ट टू सी दिस थिंग. लेकिन डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम इज सेइंग कि मेरे पास तो बॉल बाय बॉल है. डेटा फ्रेम कंटेन्स द डेटा बॉल बाय बॉल, कि हर बॉल का डेटा है मेरे पास. तो नाउ व्हाट शुड आई डू, अगर मेरे पास बॉल बाय बॉल डेटा है तो. So what we have to do is just group by the data. So let's see how to do group by in R programming. Now it's not just about R programming. If you are in Python, if you are doing SQL, आप SQL सीख रहे हो, आप Python programming सीख रहे हो. The question is, I want to calculate the run for each player. I am using a word each. जब भी ये word आ जाता है ना, remember group by is the answer. You have to group by your data. So there you will write DF2, then group by. In the group by, you have to write down the column name is batsman, where the data of batsman is given. Then go into the detail of batsman. Now the data is being grouped by with the batsmans only. What we have to do the sum of batsman run column. But to do that part you need summarize. इसके लिए आपको summarize की जरूरत है. क्योंकि हमें क्या करना है, समराइज क्या करेगा, आपके लिए एक नया कॉलम ऐड करेगा. लेट्स से द नेम ऑफ द कॉलम विल बी स्कोर, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्कोर इज द सम ऑफ बैट्समैन runs. That's it. And let's execute. If I execute this code, it will show the data of all the players. Look at this. But I will put this thing in a new variable. इसको एक नए वेरिएबल में डाल देते हैं. Let's say temp df. Okay. So we'll be having this temp df now. Still there is one more thing to do left. एक चीज और कर सकते हैं, इसको जाकर अरेंज कर देते हैं. Let's arrange the data so that it will sort in descending order. So I'll get the data of those player जिन्होंने ज्यादा रन बनाए, उनका डेटा ऊपर आना चाहिए. Let's see the head of temp df and let's see the output. Perfect. So this is the score of the player. Virat Kohli has made this number of runs. Raina has made this number of runs. So these are the first top six batsmen जिन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए आज तक. I hope it is clear that how to do group by in R programming.
नाउ देर इज वन मोर थिंग वी कैन डू विद दिस। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहां पर। ओके, द क्वेश्चन इज, हम लोगों को क्या करना है कि दिस वॉज द सम ऑफ ऑल ऑफ द मैचेस दैट दे हैव प्लेड सो फार। जितने भी मैचेस आज तक उन्होंने खेले हैं उन सभी मैचेस का सम हमारे पास यहां पर निकल कर आया। ओके, बट देर इज स्लाइटली सम एडिशन। इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा एडिशन है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक मैच का स्कोर देखना है, नॉट अ स्पेसिफिक मैच। जिस भी मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हो मुझे उस मैच में देखना है। सपोज जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सबसे ज्यादा रन आज तक आईपीएल में किस प्लेयर ने बनाया इन अ सिंगल मैच। अगर मैं हिंदी में बोलूं क्वेश्चन, मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि किस बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाया एक मैच में। क्योंकि ये जो डेटा आप देख रहे हैं, दिस आउटपुट इज देयर होल करियर डेटा, आईपीएल का पूरे करियर का डेटा है। मुझे देखना है किस एक मैच में, सिर्फ एक मैच में, दैट पर्टिकुलर मैच इन द पर्टिकुलर प्लेयर हैज स्कोर्ड मैक्सिमम रन। द आंसर इज वेरी 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 सिंपल। आपने बैट्समैन से ग्रुप बाय किया, तो बैट्समैन से ग्रुप बाय किया तो बैट्समैन का डेटा आपके पास आ चुका है, यू हैव द डेटा ऑफ बैट्समैन। देयर इज वन मोर एडिशन इज कि आप बैट्समैन के साथ साथ ऐड करके आओ मैच आईडी। जस्ट ऐड, देयर इज वन मोर कॉलम इफ यू विल सी इन योर डेटा फ्रेम, मैच आईडी। क्योंकि हमें मैच भी तो चाहिए इस बार, हमें देखना है कि किस मैच में। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मैचेस। अब आउटपुट देखते हैं। लुक एट दिस आउटपुट नाउ। So you are getting the data of the matches like in match 411, some ID is there, कोई match ID है 411। तो सबसे ज्यादा रन क्रिस गेल ने बनाए थे 175, then this ब्रेंडन मैकलम 158, then this AB डिविलियर्स 133, then this 130। इस तरीके से हम लोगों के पास मैक्सिमम रन एक मैच में किस प्लेयर ने बनाया। दिस इज हाउ वी डू द ग्रुप बाय इन आर प्रोग्रामिंग एंड ऑल्सो द यूज ऑफ समराइज।